Hey guys, welcome to Raya Tutorials. This is Krisha and I welcome you to the first video, our first lesson of 12th standard SYGC. And I know मैं बहुत टाइम बाद शूट कर रही हूँ. अब टाइम जनरली मिल ही नहीं रहा था कि मैं 12th का शुरू कर पाऊँ. And I know you'll be finding this setup very unfamiliar compared to the videos in 11th. 11th का setup पूरा अलग था और ये काफी confined है, काफी छोटी स्पेस है. But I hope आपको ये setup भी धीरे धीरे familiar लगने लगे. Okay, so this is our first video of 12th SYGC French. ये बारी हमको सिर्फ 6 lessons है. तो बहुत इजी हो जाएगा आपको पढ़ाना क्योंकि लेसन 0 में जो भी है वो हमने ऑलरेडी पूरा साल कवर अप किया ही है 11th. तो आई रियली होप कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट, इफ नॉट हर एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपका काफी गैप भी हो गया ना 11th के एग्जाम और 12th में, तो थोड़ी चीजें चलो ह्यूमन माइंड भूल ही जाता है, लेकिन कोई बात नहीं. बट आई रियली होप कि आपको कॉन्सेप्ट मतलब समझा हो, अगर याद आ रहा हो, क्योंकि याद रहना क्या है, अगर आपको समझ में आ गया तो वापस देखो कि आपको वापस याद आ जाएगा. तो बिफोर वी बिगिन 12th, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, आप 11th का इफ नॉट सब टॉपिक्स देन चलो मेन टॉपिक्स जो हमारे हैं वो प्लीज पक्के कर लेना, ठीक है. सो या लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1 ऑफ SYGC French. So let's start with communication. Before communication, I would like to discuss a page which is before the communication part. Page number 29 in the new book. पता नहीं वो बाद में change हो जाए नहीं. It's something like, can say this. I'll put a part of it somewhere around the screen, okay? It is basically talking about food. And why am I discussing this? Because food is very important. यहाँ पे बोला गया है कि what do French people eat in breakfast, in lunch, in dinner. So, les repas du jour en France. First is le petit déjeuner. Déjeuner means lunch. Petit means small. It's kind of, you can say, pre-lunch. So basically, it means breakfast. Okay. So what do they have for breakfast? So en bread, en croissant, du pain. अभी croissant को बोलने के भी तरीके होते हैं. कुछ लोग croissant बोलते हैं, कुछ लोग croissant बोलते हैं, कुछ लोग अलग-अलग बोलते हैं. And you are well aware of the fact that I'm not very good with pronunciation, so I'm really sorry. So yeah. En bread, one takes a croissant. Du pain, pain means bread. Du pain avec du beurre or de la confiture, du jus de fruits et du café. So it basically means that for breakfast, French people, they take croissant and bread with butter, or you can say jam. La confiture means jam, and then jus de fruits, yani fruit juice, or du café, that means coffee. Okay. Now let's come to le déjeuner. Okay. On préfère un déjeuner léger, which means that they prefer a light lunch. They do not take a heavy lunch. They prefer light lunch. They prefer a sandwich or da yaourt, that means yogurt. De la salade avec une moisson. That means they prefer sandwich or yogurt and salad with a drink. Okay. Now let's see what do they prefer for dinner. Just like the name suggests, it's dinner. On manger du poisson or de la viande. That means they have either fish or meat. Des legumes. That means vegetables. Du fromage, fromage means cheese, et de la baguette. For foies or boiled du vin rouge or blanc. That means they have fish or meat with vegetables, cheese, baguette, and for drinking they would have wine, red or white. Okay, so this is basically what they eat in a day. Okay, now finally after this, let's come to the communication part. So let's start with A. Au restaurant, Anne et Luc regarded le menu. Anne and Luc are looking at the menu. Okay, server. Bonjour, madame, monsieur, whose this is? Bonjour, madam and sir, what would you like to have? Anne says, une salade au poulet pour moi. That means she says one chicken salad for me. And Luke says, je vais prendre une crêpe. Crêpe means basically, you can say pancake kind of a thing, okay? So he says that I would have crêpe. And Sergio says, et pour boire, which means and to drink. To which Anne says, un jus d'orange, s'il vous plaît. One orange juice, please. And Luke says, a coca pour moi, which means one coke for me. And Sergio says, très bien, madame, monsieur, which literally means very well, madam and sir, but it indirectly means that he's saying okay. Après la repas, le serveur apporte la addition, which means the bill. Ils payent et Louis licent en pourboire. My pronunciation is so bad. Okay, so इसका meaning is कि जब meal खत्म हो जाता है, after the meal is done, the serveur brings the bill and they pay it and leave a tip. Okay, so let's come to the B. Dans une famille, in a family, Toto. Mama, ça sent bon, je ai faim. Mom, it smells amazing. I am very hungry. Okay. And Mama says, la dinner est prête, à table, mes enfants. The dinner is ready. Come to the table, my children. Okay. So let's come to see. Avant the boire, Monsieur Rox sort les apéritifs. Apéritifs, they are having, like, you can say, kind of welcome drink. Okay. So Monsieur Rox says, à votre santé, to your health. And les autres responded, à la vôtre, which means to yours. तो वो बोल रहा है to your health और ये लोग बोल रहा है to yours. Basically, it's a toast. They are cheering. Okay.
Now let's come to D. There are three parts here. If you are offering food, if somebody is offering to you and you are accepting it, if somebody is offering and you are rejecting. ठीक है, सबसे पहले आता है on offering the food. Encore of you de quiche, which means a little more quiche. Basically you are asking the person कि आपको और quiche चाहिए, basically food item, okay? और उसका ही दूसरा वे भी है, whose boles de la salade, would you like some salad? Okay? So अगर आप वो accept कर रहे हो, आपको कोई ऑफर कर रहा है और अगर आप उसको accept कर रहे हो, तो it is volunteers, which means yes, gladly. And second way to say this is sure works then, mercy. I would like that, thank you. Okay. Now if somebody is offering something and you want to reject it, how would you say? Refuser. Okay, that means to refuse. Non, merci, je bien manger, which means no, thank you, I've eaten well. Okay. And second way to say this is c'est délicieux, mais je n'ai plus faim, which means it's delicious but I'm not hungry anymore. So this is a polite way to refuse. Yeah. So let's come to the topics now. So starting with a very important topic for both point of view. अगर कोई भी important topic होगा, I'll make sure कि मैं वो highlight करूँ ताकि आप ज्यादा attention पे करो. So let's move on to passive composer. So passive composer का meaning क्या है? अभी हमने already past में passive resound किया हुआ है. Passive resound means recent past, okay? कि मतलब वो भी past tense ही था, लेकिन जो recent past जो अभी अभी हुआ है, like the name suggests. तो passive composer में तो हमको कोई hint भी नहीं मिलता है कि what does the name suggest. Passive composer you can say is past tense, ठीक है? It is not about recent past, it is about past. Proper past you can say. या फिर you can also call it past perfect tense. Now अभी आपको इतना स्ट्राइक नहीं होगा कि past perfect tense क्या होता है. Like let's say I have begun therapy. Oh, this was taken from Dear Zindagi. Okay, so let's say I have begun therapy, or Neeta has done her homework, or Neeta has written her homework. ठीक है, क्योंकि मुझे एक en kind of चाहिए जिसको मैं बोल सकूं, तो इसको बोलते हैं past participle. लेकिन देखिए वहां पे बाद में जाते हैं. So ये have plus कोई verb आ रहा है, that is known as perfect. अभी एक और हमारा था past perfect continuous वगैरह वगैरह. I'm not talking about that part. ठीक है, मैं बात कर रही हूँ past perfect tense की. हमारा present perfect में has plus whatever whatever, future में will have plus whatever whatever. अब देखो जहाँ पे have आ रहा है वहां पे perfect word add हो रहा है. So passive composite is kind of वैसा ही, ठीक है. And it is also normal past, not just past perfect. Okay, so passive composite are of two types. Like आपने एथरो वर्ब अवार वर्ब पढ़ा है, राइट? और ऑक्सिलियरी वर्ब्स वहां पे लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना. ऑक्सिलियरी वर्ब का मतलब है अवार वर्ब और एथरो वर्ब. हमारा टू हैव वर्ब, टू बी वर्ब, वही ऑक्सिलियरी वर्ब्स है. तो ये टू टाइप के होते हैं, ठीक है. कुछ वर्ब्स के लिए, कुछ सेंटेंसेस के लिए अवार यूज होता है और कुछ जगहों पे एथरो यूज होता है. आई जस्ट शो. अभी मैं कोई साइन वाइन नहीं लगा रही, ठीक है. इस चैप्टर में अवार की बात करेंगे. चैप्टर 1 इज अबाउट अवार वर्ब, चैप्टर 2 इज अबाउट एथरो वर्ब, ठीक है. तो पहले तो हम अवार की बात कर रहे थे, अवार की बात करते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज अभी लेट्स डू वन थिंग. जैसे मैं आपको हर चीज का फॉर्मूला बता देती हूँ और हमारी बुक में भी जैसे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, मैं वैसे आपको समझाती हूँ. तो सबसे पहले लाइक ऑलवेज आएगा सब्जेक्ट, ठीक है. सब्जेक्ट प्लस हमारा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ अवार आएगा, ठीक है. अब यहाँ पे हम अवार की बात कर रहे हैं, ठीक है. ये चैप्टर 1 की बात है और ये चैप्टर 2 की बात है. दोनों का फर्स्ट टॉपिक यही रहेगा, पासिव कंपोजर, ठीक है. हम बात कर रहे हैं अभी अवार की. तो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट टेंस ऑफ अवार. मैंने पास नहीं बोला, ठीक है, बताती हूँ बाद में क्यों. पहले हम आते हैं प्रेजेंट टेंस ऑफ अवार. मैंने यहाँ पे प्रेजेंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपने जो 11th में पढ़ा हुआ है अवार एथरो, इट इज प्रेजेंट टेंस, ठीक है. वो प्रेजेंट टेंस होता है. और इसके बाद आएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल का मीनिंग आई एम वेरी श्योर कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, ठीक है. और इसके बाद बुक में तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आएगा आपका प्रेडिकेट व्हाटएवर, जो आपका कंटिन्यूएशन जो आगे होता है ना हमारे सेंटेंस का एंड पूरा, वो आ जाएगा. ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लिखना जरूरी है, ठीक है. अभी प्रेजेंट टेंस ऑफ अवार. अवार का आपको याद है ना, आवांस, आवेस, कॉन्जुगेशन पूरा इट वाज प्रेजेंट टेंस में ही, ठीक है, वही यूज होगा. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस ऑफ अवार, ठीक है. लेकिन पास्ट पार्टिसिपल क्या है, तो मैं यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज कर रही हूँ. क्यों? पास्ट कंपोज है, पास्ट ना ऐसा हो तो नहीं सकता, तो पास्ट पार्टिसिपल. नाउ व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल? व्हेन आई गिव यू एग्जांपल, आई हैव बिगन थेरेपी. आपने कभी सोचा कि उसका बिगिनिंग समथिंग, बिगिन का पास्ट इज बिगैन. व्हाई डिड आई नॉट यूज बिगैन? आई हैव बिगैन थेरेपी. नहीं, व्हाई डिड आई यूज बिगन? बिकॉज बिगन जो है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है. हैव यू रिटन योर होमवर्क? रिटन, रोट नहीं आया. रोट इज द रियल पास्ट ऑफ राइट, लेकिन हम बोलते हैं रिटन क्योंकि हैव में ये आता है. पास्ट परफेक्ट के साथ जो भी ऐड होता है उसको बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल. रिटन, फिर कुछ वर्ड्स में चेंज नहीं होता है. हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट? तो फिनिश्ड अभी अगर आपको पास्ट परफेक्ट नहीं बोलना है, सिंपल पास्ट बोलना है, तो आप बोल दोगे कि आई फिनिश्ड माय असाइनमेंट.
लेकिन वही सेम फिनिश्ड यूज हो रहा है और हैव में भी फिनिश्ड यूज हो रहा है। कुछ वर्ड्स में सेम होता है लेकिन कुछ वर्ड्स में डिफरेंट भी होता है। मैं बोल दिया बिगन, रिटन वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी हम बात करते हैं फ्रेंच की। मैं आपको इंग्लिश का समझा रही हूँ क्योंकि आपको अगर इंग्लिश का बेस ऐसे क्लियर हो रहा है तो आपको फ्रेंच समझ में ज्यादा इजी होगा, ठीक है। अभी सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल अभी हम फ्रेंच में कैसे फिगर आउट करेंगे इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है, ठीक है। तो हमारे 3 टाइप के वर्ब होते हैं, ठीक है। पहले होता है हमारा ईआर वर्ब, आरई वर्ब, आईआर वर्ब। तीनों का एग्जांपल ले लेते हैं, बुक का ही एग्जांपल ले रही हूँ। तो यहाँ पे जो एंडिंग्स होंगी ना वो चेंज हो जाएगी। अभी ये नॉर्मल हमारे प्रेजेंट के है, ठीक है। अभी अगर मुझे इसका पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए ना तो इसका एक अलग ट्रीटमेंट होता है। इसको मैं कर दूंगी ई आर कट करके ई लगा दूंगी। यहाँ पे मैं आर ई को कट करके यू लगा दूंगी विदाउट एनी साइन, ओके, सिंपल सा यू। और यहाँ पे मैं आई आर को कट करके सिर्फ एक आई लगा दूंगी। अगर आपको अभी बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है, आई एम रियली सॉरी, ओके। समझो अभी मुझे ई आर को कट करना है यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, इसका पार्टिसिपल होगा प्री है रे। इसका अगर मैं आर ई कट कर दूं तो एज इट इज पहले लिखा, उसके बाद मुझे एक यू लगाना है। दिस मीन्स टू लूज समथिंग, दिस मीन्स टू प्रिपेयर समथिंग, दिस मीन्स टू फिनिश समथिंग, ओके। इसका मैंने अगर आई आर कट कर दिया तो क्या आएगा, बाद में आई भी लगाया दोबारा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये पास्ट पार्टिसिपल्स है ऑफ दीज वर्ड्स। दिस इज हाउ इट्स डन। तो अगर मुझे पास्ट कंपोजर बोलना है तो मैं सब्जेक्ट यूज करूंगी, अवार का जो भी कॉन्जुगेशन होगा जो सब्जेक्ट के साथ जाना है, अगर ज है तो आई आएगा, फिर न्यूज है वॉन्स आएगा, तो ऐसे है वो मैं सब्जेक्ट के साथ जो कॉन्जुगेशन हमारा बैठ रहा है वो जो हमको ऑलरेडी पता है 11th में हमने कर रखा है, ठीक है, उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल। कौन से पास्ट पार्टिसिपल, जो हम वर्ब यूज करना चाहते हैं। अगर वो हमारा सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहा है तो प्रिपेयर है, अगर हमारे सब्जेक्ट ने कुछ खो दिया है तो पर ड्यू, अगर हमारे सब्जेक्ट ने कुछ फिनिश कर दिया फिनिंग। तो पास्ट पार्टिसिपल्स ये है, ओके। अभी हम आते हैं एक लाइक प्रॉपर सेंटेंस पे, ठीक है, क्योंकि फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि अफर्मेटिव कैसे हो रहा है, नेगेटिव कैसे हो रहा है, इंट्रोगेटिव कैसे हो रहा है, उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस भी है उसमें, ठीक है, तो उनका भी हम पता करेंगे, ठीक है। सो हम अभी वही एग्जांपल्स यूज करेंगे जो हमने ऑलरेडी यूज किए हुए हैं, बुक के एग्जांपल्स देंगे, ओके गाइस। सो प्रिपेयर का सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, देन वी विल राइट आवर कॉन्जुगेशन, देन वी विल राइट द पार्टिसिपल, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे जो आगे का हमको लिखना है वो, ठीक है। ये 3 चीज मुझे पता है, उन्होंने लिखा है आविक नौजामीज, वी प्रिपेयर्ड और वी हैव प्रिपेयर्ड और टार्ट विद आवर फ्रेंड्स। मैं आविक नौजामीज नहीं लिख रही हूँ अभी क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख दिया, ठीक है। वी हैव प्रिपेयर्ड और टार्ट, ओके। नेक्स्ट परड्यू विच मीन्स टू लूज समथिंग, सो एल एंड देन रुको ये बहुत दूर है, and then we will use the avar conjugation of L which is a, and then we will say the past participle, ठीक है। इसके बाद उसने जो भी लूज किया है मैं वो लिख देती हूँ, ठीक है, ओके। नाउ थर्ड फिनी। फिनी के लिए मैं लिखूंगी क्या था, हाँ आई था, आई, ये अपने में ही एक पूरा वो हो गया, ठीक है, जैसे ये है। अभी हम सीधा हमारा ये लिखेंगे पार्टिसिपल विच इज फिनी, Mon Repa. I have finished my meal. ठीक है. We have prepared a tart. She has lost her book. We have finished our meal. Sorry, I have finished our meal. I'm really sorry. So आप देख रहे हो ना एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट, our conjugation, then our past participle, then आगे का हमारा जो भी हम लिख रहे हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस वो चीज, ठीक है। अभी बात करते हैं अफर्मेटिव की। ये हमारा ऑलरेडी अफर्मेटिव ही है, ठीक है। एक काम करते हैं हम इसको ही लेके करते हैं, रुको। अफर्मेटिव का क्या है, मैं जो आपको अभी पढ़ाया है वो अफर्मेटिव ही है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेगेटिव की। दिस इज ऑलरेडी अफर्मेटिव, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव, ठीक है। नेपा, हमारा नेपा आ जाता है, ठीक है। तो ने और पा के बीच में हमारा ये वर्ब आएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि नूस, ने, avons, pa, prepare, यून, टाटे, ठीक है। नो, ने, avons, pa, prepare, यून, टाटे। वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड और टाट, ठीक है। लेकिन अब मुझे पूछना है हैव वी प्रिपेयर्ड अ टाट, तो इसके 2 वेज होंगे टू आस्क दिस। इंट्रोगेटिव मैंने आपको पहले ही बताया था 11th में कि उसके 2 वेज होते हैं, एक होता है एस एंड हमारा आगे का सेंटेंस एज इट इज, ठीक है। इज इट दैट वी हैव प्रिपेयर्ड अ टाट, और व्हाट वी कैन डू इज चेंज द पोजीशन ऑफ आवर वर्ब एंड आवर सब्जेक्ट और उनके बीच में हाइफन लगा दो, एग्जैक्टली सेम थिंग, ठीक है। अभी मैं आपको इंट्रोगेटिव के 2 वर्जन दिखाती हूँ। फर्स्ट इज एस सर्कल
इज इट दैट, एंड देन पूरा सेंटेंस एज इट इज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ऐसा का नोज आवांस प्रिपेयर यूं ताटे. इज इट दैट वी हैव प्रिपेयर्ड अ टार्ट. ठीक है, अभी यही सेम चीज हम ऐसे भी कर सकते हैं. आवांस हाइफन नोज प्रिपेरे, ये सब तो सेम ही रहेगा. ठीक है, यून टार्ट. हैव यू प्रिपेयर्ड अ टार्ट. ठीक है, सो आई होप आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के दोनों वर्जन सब कुछ समझ में आ गया हो. ठीक है, उन्होंने बहुत सारा उन्होंने सब पूरा हमारा जो होता है सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स के साथ किया हुआ है. तो अगर आपको कंफ्यूजन है आप उसको रेफर कर सकते हो. दैट टेबल इज वेरी नाइस. और उसके अलावा हमारे कुछ एक्सेप्शंस है जिसका एक अलग कॉन्जुगेशन होता है. ठीक है, तो वो तो आपको बुक से ही लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे वर्ब्स है. ठीक है, हमारे बहुत कुछ जेन्युइनली इंपॉर्टेंट वर्ब्स भी है. ठीक है, इंक्लूडिंग अवार एट्रो देमसेल्व्स. ठीक है, सो उनका भी एक अलग वे है. उनका पार्टिसिपल, ये जो हम नॉर्मल मेथड करते हैं, आई आर को कट करके आई लगा देते हैं, आर ई को कट करके यू लगा देते हैं, उनका ऐसे नहीं होता है. दे आर इरेग्युलर. ठीक है, इरेग्युलर बहुत सारे हैं. एट्रो वाले मतलब चैप्टर 2 में भी है, इसमें भी है. तो आपको वो खुद ही करना पड़ेगा. बहुत सारे वर्ब्स है. ऐसा नहीं है कि एक गो में याद रहना चाहिए, लेकिन सेम थिंग जो मैं आपको हमेशा बोली है, जितना आप बार बार उसको यूज करोगे आपको खुद ब खुद याद रह जाएगा. इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है. लेकिन एट दिस पॉइंट आई एक्सपेक्ट कि आपको पता चल ही गया होगा कि कौन से वर्ब्स हैं जो बार बार आ रहे हैं. जैसे कि हमारा वन ईयर हो गया, अवार एट्रो तो ऑब्वियसली. ठीक है, पहले वर्ब बहुत आता है. हमारे इरेगुलर्स जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स है. ठीक है, तो जो आपको पता है कि वो बार बार आने ही है, तो आप उनका कॉन्जुगेशन बहुत अच्छे से ऑलरेडी कर लो. ठीक है, आपको पता तो होगा ना, आपने 11th में बहुत सारे बिलान किए होंगे, प्रैक्टिकॉन्स किए होंगे, तो आपको, और पेपर भी आपने दिया, तो आपको पता है कि कौन सा रिपीट हो रहा है वो बार बार बार. बाकी सारे भी होते हैं, लेकिन ये कौन सा जो बार बार रिपीट होता ही है. ठीक है, तो उनका तो अभी आप मुझे टिक मार्क करवाने की भी जरूरत नहीं है. आपको खुद को ही पता है कि क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है. आप वो खुद टिक मार्क करके वो प्रायोरिटी बेसिस पे याद करो. ठीक है, बाकी सारे भी याद करने की कोशिश करो. ठीक है, सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके गाइस, लेट्स कम टू पार्टिटिव आर्टिकल्स. Partitive articles, I would say, are not that important, but they are gonna stay. क्योंकि आपका नाम जो 12th का जो पढ़ा रहेगा उसमें एक kind of major chunk you can say is gonna be food. ठीक है, so partitive articles here is about the articles that you add with some जो भी food items है वगैरह वगैरह. आप ऐसे ही समझो इसका लॉजिक. ठीक है, हमको ऑलरेडी पता है कि अगर मैस्कुलिन है तो डी हो जाएगा, फेमिनिन है तो दला हो जाएगा, वर्बल है तो डी एल अपोस्ट्रोफी हो जाएगा, प्लूरल है तो देस हो जाएगा. तो ये तो हमको, ये छोड़ दो अभी के लिए, ये तो हमको पता ही है. ठीक है, लेकिन अभी अगर हम फूड की बात करें, ठीक है, तो हम फूड को भी ऐसे नहीं लिख सकते. ठीक है, कुछ भी नहीं लिख सकते. ठीक है, फूड के लिए हमको एक स्पेसिफिक आर्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो वही आर्टिकल्स को बोला जाता है पार्टिटिव आर्टिकल्स. ठीक है, तो इसका ज्यादा कुछ नहीं है. जैसे कि मैंने अभी बोला, समझो अगर कुछ फूड आइटम है जो मैस्कुलिन सिंगुलर है तो डी यू आएगा, फेमिनिन सिंगुलर है तो दल आएगा, वोवल है तो डी एल अपोस्ट्रोफी आएगा, और प्लूरल है तो देस आएगा. फॉर एग्जांपल डू कैफे, द लव यॉन दे, द ल एल अपोस्ट्रोफी ह्यूल. इसका लॉजिक ये है कि वोवल एच इज ऑल्सो एच जो लाइक साइलेंट बोला जाता है उसको भी वोवल कंसिडर किया जाता है फ्रेंच में. ठीक है, सो और प्लूरल डेज फॉर्म्स. ठीक है, अभी इसका एक और कैच है, बस छोटी सी बात है. अगर हम फिक्स्ड क्वांटिटीज की बात करें, जैसे कि बुक में दिया गया है यून डोजे दे बनानास. ठीक है, अगर 1 डजन ऑफ बनानास है तो हम दे यूज करेंगे. इफ देयर इज समझो कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी अगेन लाइक 250 grams of something, then you have to say 250 grams like this. You have to use they. You do not have to use any of these. You have to use strictly they. Okay? अगर कुछ नेगेटिव की बात करनी है, समझो एना, वहां पे कुछ एंटोइन था शायद तक, आई डोंट नो, यहाँ पे स्पेस में मैंने एना लिख दिया. एना ना बॉय पा द यू. अगर उसको पानी नहीं पीना है, हम बोल रहे कुछ नेगेटिव, तो वहां पे भी ये यूज होगा. ये यूज नहीं होंगे, ये यूज होगा. और ये अपोस्ट्रोफी इसलिए क्योंकि ये डी ई है, डी यू है, इसलिए नहीं है. ओके, सो या so partitive articles इतना ही है. okay, let's move on to the next topic. Now let's come to tooth. tooth का meaning है, you can say सब कुछ. it means all, it means everything, it means whole. ठीक है, tooth का meaning है सब कुछ, all, whole, everything. so this is what the meaning of tooth is. ठीक है, अभी इसका भी ना अलग अलग टाइप होता है. जैसे कि सबसे पहले हम आते हैं मैस्कुलिन सिंगुलर फॉर्म ऑफ tooth is tooth. ठीक है, masculine पहले feminine singular बना देते हैं. feminine singular form of tooth is tooth, like expected. just add an e and it's feminine. now masculine plural form of tooth is tooth. okay, and feminine plural form of tooth it is toothes. okay, tooth, toothe, toothes. okay, so अभी हम आते हैं एग्जाम्पल पे. सबसे पहले tooth का एग्जाम्पल ले लेते हैं. एल और मोन्ट्रे tooth la gato, she ate. अभी मैंने ना यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स है ऑलमोस्ट सेम है. या तो नाम चेंज कर दिया, या तो थोड़ी बहुत चीजें चेंज कर दिया, या तो बड़े सेंटेंस को छोटा सेंटेंस बना दिया है.
लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि आपको लाइक थोड़ा समझ में आए। लाइक अगर उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होंगे ना, तो आई वुड यूज समथिंग लाइक यहाँ पे वाईआरएफ मैंने यूज किया, यशराज फिल्म्स वैसे। सो लाइक मेकिंग इट अ बिट थोड़ा इंडियन साइड, ठीक है। सो ठीक है, सो फर्स्ट आता है हम तुत के एग्जाम्पल पे। एलो मॉन्शे तुतला गातो, शी एट ऑल द केक। नाउ अभी आप यहाँ पे देखोगे ये दो सेंटेंसेस में हमने यूज किया है पासे कंपोज है। जो टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया था, देखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म, उसके बाद हमारा पास्ट पार्टिसिपल, तो ये पास्ट पार्टिसिपल्स है, आपको दिख रहा है ना। सो ये डेकोरर का है और ये मॉन्शर का है, ओके। सो या सो इसका है एला मॉन्शर तुतला गातो, शी एट द होल केक, ओके। अभी आते हैं तू ते पे, आता है तुते पे। तो नूस अवॉन्स डेकोरे, अगेन सेम पासे कंपोज है। नूस अवॉन्स डेकोरे तुते ला मेसॉन, क्योंकि ये ला मेसॉन है इसलिए तूते आ गया। अगर उसने डेकोरेट किया होता, समझो कुछ भी जो ला मेसॉन नहीं है, कुछ मैस्कुलिन है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे तू ते ना आता, यहाँ पे तुत आता, ठीक है, क्योंकि ये आपको लगेगा कि इसका क्या है, मतलब क्या है। तो अगर हम कुछ फेमिनिन की बात करें तो ये आएगा, कुछ मैस्कुलिन की बात करें तो ये आएगा। दैट्स व्हाट द होल पॉइंट इज, विच यू आर आई गेस वेरी वेल अवेयर ऑफ एट दिस पॉइंट, कि ऐसा टेबल जैसा होता है तो क्या कहाँ पे अप्लाई होता है। सो नो समवन डेकोरेट तुतला मेसॉन, वी डेकोरेटेड द होल हाउस। हमें लिखा हुआ है कि क्रिसमस के वक्त, लेकिन मैंने कहा कि इट्स फाइन, छोड़ो। अभी हम आते हैं टूस पे, ठीक है। सो एना एमे टूस लेस फिल्म्स दे वायरफ, एना लाइक्स ऑल द फिल्म्स ऑफ वायरफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑल आ गया, यहाँ पे उसका होल था, ठीक है। अभी ये देखते हैं, टू तेज का देखते हैं। डॉस सेटेविल इन दिस सिटी, टू तेज लव टू तेज लेस प्लेसेस। मेरा एक तो प्रोनाउंसिएशन इज वेरी बैड, आई एम रियली सॉरी, ओके। सॉन डेलिस, ऑल द बीचेस आर ब्यूटिफुल इन दिस सिटी। तो आप देख रहे हो कैसे यहाँ पे तुत है, यहाँ पे तूते है, यहाँ पे टूस है और यहाँ पे तूतेस है, ठीक है। सो दैट इज ऑल। अभी तुत का इतना ही है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इवन एज अ स्टूडेंट माई सेल्फ मुझे थोड़ा बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता था तुत, कि भाई क्या मतलब तुत तुते टूस तूते, मतलब याद करने में बहुत ईजी है, पर जब आपको पूछा जाए कि इसमें क्या अप्लाई होगा तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, आपने जैसे कि यहाँ पे ल मेसॉन, तो कैसे पता चल रहा है आपको कि फेमिनिन बात हो रही है, और ये मेसॉन्स नहीं है, ये एक मैसो की बात है, क्योंकि वहां पे लेस आ जाता, ठीक है, तो वहां पे आएगा तूते। अभी आप लेस फिल्म देख रहे हो, तो ये हो गया, ये प्लूरल हो गया, ठीक है, प्लूरल है, ये आएगा हमारे टूस पे, ठीक है। अगर आप कंफ्यूजिंग हो रहा है, मोस्टली मैस्कुलिन सिंगुलर, अरे मैस्कुलिन प्लूरल ही होता है। अगर इफ यू आर कंफ्यूज्ड तो आप देखो उसमें लास्ट में ई है या नहीं है वगैरह वगैरह, उसमें आपको थोड़ा आइडिया आ सकता है। नहीं आइडिया आ रहा है तो यू कैन पुट अ बेट ऑन द मैस्कुलिन प्लूरल साइड, ठीक है। और फिर बातें करते हैं जैसे कि हमारे लेस प्लेजेस की। यहाँ पे देखो ई है, ठीक है, तो यहाँ पे तूतेज आया। अगर हम प्लूरल की बात करें, मैं इसलिए बोला था कि मतलब हमेशा राइट जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पर अभी एग्जाम में ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि हमको एक चूज करना पड़ता है कि हम यहाँ पे बैट लगाए, यहाँ पे बैट लगाए, तो सेफर साइड इज मैस्कुलिन प्लूरल, ओके। सो या और या तो आप ये आगे की चीज देखने की, तो आपको पीछे की चीज पता चल जाएगी कि यही है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स कम टू वाई एंड ई एन। सो वाई एंड ई एन है क्या, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वाई की। ई एन के लिए एक अलग सा चार्ट मैं बाद में बनाऊंगी, सबसे पहले हम वाई की बात करेंगे, फिर भी क्योंकि दे आर कंबाइंड टॉपिक्स, मैं आपको डिफरेंसेस के लिए यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाई की। वाई इज लाइक यू कैन से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द काइंड ऑफ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको समझो, अगर आपको देर यूज करना है, देर, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, अंकिता वा आ टोक्यो डेमो, वी एल वाई वा। सो अगर आपको देर बोलना है, इसमें पूछा गया इज अंकिता गोइंग टू टोक्यो टुमारो, तो ये बोलती है यस शी इज गोइंग देयर। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लाइक ऐसे बोलना हो कि हाँ, मतलब समझो अगर आप इन रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन इमेजिन कर रहे हो, प्रैक्टिकली बोल रहे हो, इज अंकिता गोइंग टू टोक्यो टुमारो, yes she is going to Tokyo tomorrow. This becomes a bit awkward, but when you say कि yes she is going there tomorrow, so ये बहुत ही minute सा difference है, but this is how conversational tone sets right, ठीक है। जिसकी हम यहाँ पे why यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसका मीनिंग है there, हम नॉर्मली बोल सकते हैं, but this is just conversational एक टोन मेंटेन किया जाता है, इसीलिए why is there, okay. So yeah, now let's begin this. So सबसे पहले है why. Why कहाँ पे यूज किया जाता है, if there is a place that I'm talking about after using words like a, dos और en, जैसे कि यहाँ पे a टोक्यो, यहाँ पे मैंने बोला है dos मगासिन, ठीक है। तो अगर ये वर्ड्स हो और उसके बाद कोई प्लेस हो, ठीक है, तो मैं why यूज करूंगी देर बोलने के लिए, ठीक है। जैसे कि अंकिता वा आ टोक्यो टुमारो, then we are saying yes she is going, so we are saying l y wa, ठीक है। प्लेसमेंट,
अगर वो पास से कंपोज है, अगर वो पास से डिस्सॉ है, और अगर वो फ्यूचर प्रॉश है तो उसका प्लेसमेंट थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि जहाँ पे दो वर्ब इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा। यहाँ पे वनीर प्लस वर्ब होगा, यहाँ पे अवार प्लस वर्ब होगा, यहाँ पे आपका आलेड प्लस वर्ब होगा। जहाँ पे दो वर्ब्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसका प्लेसमेंट कहाँ पे लगता है, वाई का, ये टॉक नॉट देयर। लेकिन वाई का प्लेसमेंट कहाँ पे लगेगा वो हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे फ्यूचर प्रॉश पे जहाँ पे आलेड प्लस वर्ब है तो हम कौन सा वर्ब कंसिडर करेंगे, वी विल कंसिडर बिफोर इन्फिनेटिव। बिफोर इन्फिनेटिव, मैं आफ्टर आलेड वर्ब, आफ्टर दिस वर्ब, ये सब कुछ नहीं बोल रही, बिफोर इन्फिनेटिव वर्ब, बस इतना सुनो, ठीक है। आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। हमारे काफी पहले भी जो प्लेसमेंट जो है मैंने उसमें आपको एकदम सॉर्टेड बोला है, तो इतना याद रखना, बिफोर इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे कि है एल वा आशितर लेस मेटेमोस दास स मगासिन, तो हमको यहाँ पे वाई चाहिए था, इतना बड़ा हमने लिख दिया इसलिए, ठीक है। वाई का प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, अभी ये काट दो क्योंकि वाई आ रहा है, ठीक है। इसके आगे कुछ होता तो वही ऑर्डर में आता वेटेमॉन्स की बात। अभी वाई आ रहा है तो वाई का प्लेसमेंट क्या होगा, बिफोर इन्फिनेटिव। तो बिफोर इन्फिनेटिव उसको यहाँ पे ले जाओ, दो वर्ब्स है, ठीक है। ये का कॉन्जुगेशन है, ये इन्फिनेटिव वर्ब है, बिफोर इन्फिनेटिव लिखा है तो हम लोग यहाँ पे ले आएंगे वा और आशितर के बीच में। सो एल वा वाई आशितर लेस वेटेमॉन्स, आगे कुछ होगा तो वो भी लिख देते, ठीक है। अभी अगर हम जा रहे हैं पासिव रेसो पे, वहां पे भी दो वर्ब्स है, एक वन ईयर का है, फिर डे है, और फिर हमारा इन्फिनेटिव भी है। सेम रूल अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे बियॉन्ड के बदले दे आ जाएगा मुझे पता है, पर आपको सेम रूल अप्लाई करना है। बिफोर हमारा इन्फिनेटिव आपको वो ले लेना है, ठीक है। जैसे कि माँ मेरे बियॉन्ड द फेरे लेस आशाज डांस लॉ ग्रॉन मगासिन, ठीक है। बहुत बड़ा है ये, इसका रिप्लेसमेंट वाई, मैंने आपको बोला ना, काइंड ऑफ यू कैन से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर कॉन्वर्सेशनल टोन। सो माँ मेरे बियॉन्ड द फेरे लेस आशिज, अभी ये जो ऑर्डर है वो तो वही रहेगा क्योंकि यहाँ पे वापस सेम चीज हो रही है, ये इसके आगे कुछ है नहीं। तो ये पूरा कट जाएगा, वाई आ जाएगा, वाई का प्लेसमेंट हो जाएगा बिफोर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है यहाँ पे, फेरे वर्ब, तो दे और फेरे के बीच में वाई, वाई इज कंसिडर्ड एज वावल हियर, सो डी कट होके वाई हो जाएगा। आंसर बी माँ मेरे बियॉन्ड द एपोस्ट्रोफी वाई फेरे लेस आशिज। आगे कुछ तो वो भी आ जाएगा, कुछ है नहीं इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है। सेम गोज फॉर पास्ट कंपोजिट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट पास्ट कंपोजिट में यहाँ कोई इन्फिनेटिव नहीं है, यहाँ पे हमारे पास पार्टिसिपल्स है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी दो वर्ब्स है, वार वर्ब और हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है वो भी। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो पास्ट कंपोजिट में हमको यूज करना है बिफोर अ वार वर्ब, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे है आज तू मीस लेस लेग्यूम्स दॉस ला फ्रिगो, ठीक है। दॉस ला फ्रिगो का हमारा एक वर्ड आ गया वाई, ठीक है। और उसका प्लेसमेंट हमारा लग चुका है अपॉस्ट्रोफी वाई, मैंने आपको बताया इसको वॉवल गिना जाता है वाई और एच को, ठीक है। सो वी अपॉस्ट्रोफी वाई, फिर ए आई हमारा जो अवार वर्ब है वो, फिर मिस लेस लेग्यूम्स, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर, दिस क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। आप देखे जा रहे हो जैसे कि मतलब मेरे को वाई लगाना है, उसका प्लेसमेंट देख रहे हो, बिफोर इन्फिनेटिव बिफोर अवार वर्ब, फिर यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल है वही। सो दिस इज हाउ वाई इज यूज्ड, उसका मीनिंग एक ही है देयर, ठीक है। अभी हम जाएंगे ई एन पे। So guys, now let's come to EN. अगर आपको Y समझ में आया है तो it is a lot similar to EN, कि like जो भी हमारे प्लेसमेंट्स वगैरह है नॉर्मली वो उसके साथ काफी मैच कर देगा। सो आपको काफी समझ में आ जाएगा अगर आपको Y प्रॉपर समझा है तो, ओके। सो EN का ना एक और यूज होता है, अगर EN को हम D के साथ मिक्स करते हैं जिसकी द, ड्यू वगैरह वगैरह, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू सेंटेंसेस, तो इट नो वेट आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट दिस सेंटेंस, ठीक है। वेट, my bad, I'm sorry. Okay, so if we talk about the plus en, then it can be used as from there, ठीक है। अगर आपको बोलना है कि कुछ from there के लिए आपको यूज करना है, ठीक है, तो आप the भी यूज कर सकते हो। और नॉर्मली भी अगर the plus कोई प्लेस है ऐसे, तो आप समझो रूपा went to Goa, did you go there too, मतलब हाँ, so yeah me too, I also been there, okay। So आप DE प्लस कोई प्लेस हो उसमें भी ये आ जाता है, DE प्लस कोई प्लेस, ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर देयर रेफरेंस। एंड अगर आप कोई पार्टिटिव आर्टिकल की बात करो, जिसकी हमने बात की हमारे ये चैप्टर में, पार्टिटिव आर्टिकल जिसमें हम खाने की बात करते हैं, और DU DE DL दला ये सब आ जाता है, वो सब हमारा जो आता है उसमें भी हमारा EN आता है। अगर हमको एक डालना पड़े तो हम ये करेंगे, और इसको इसका प्लेसमेंट क्या होगा, इसका प्लेसमेंट आ जाएगा हमारे बिफोर वर्ब के पहले, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही वर्ब है तो कुछ ज्यादा है नहीं, बिफोर वर्ब के पहले इसका प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आता है कविता हैज 6 ब्रदर्स बट शी हैज 6 ऑफ देम, तो ये मतलब थोड़ा वैसे उसमें भी यूज हो सकता है कि अगर आपको लाइक नॉट एग्जैक्टली वी कैन से अनेक शब्द के लिए एक शब्द, बट EN के ना अगर आप देखोगे थोड़े ब्रॉडर यूजेस है कंपेयर टू वाई, ठीक है। वाई का काफी नैरो यूज है, यहाँ पे EN का काफी यूज होता है, ओके। फिर इफ वी टॉक अबाउट दिस पार्ट फर्स्ट, सबसे पहले इंपेरेटिव पे आ जाता है, तो वहां पे कैसा होता है कि वहां पे सिर्फ इतना ही था ना, तो वहां पे तो हमारा एकदम सिंपल था, यहाँ पे भी हमारा काइंड ऑफ सेम ही है।
लेकिन हम लोग आफ्टर वर्ब लेते हैं, हर जगह बिफोर वर्ब लिया जाता है लेकिन इंपरेटिव में आफ्टर वर्ब। आशुतोष द बैगेज मेंटेनेंस, तो यहाँ पे हमने en ले लिया बैगेज के बदले, आशुतोष एंड द मेंटेनेंस, बाकी सब सेम। ये बिफोर वर्ब आ गया यहाँ पे, अरे सॉरी आफ्टर वर्ब आ गया यहाँ पे, फिर ये और ये दोनों साथ में आ गए, ठीक है। अभी हम आते हैं वो जो काफी सिमिलर है, फ्यूचर प्रॉश, पास्ट रिसा, पास्ट कंपोजिट। नॉट ओनली एक दूसरे से सिमिलर बट ऑल्सो हमारे वाई से एग्जैक्टली सेम। अगर हम लोग फ्यूचर प्रॉश की बात करें तो यहाँ पे उसका आ जाएगा बिफोर इन्फिनेटिव, नोस अलोन्स नितुर्ने दू मैक्सिक, तो दू मैक्सिक जो हमारा है वो आ जाएगा यहाँ पे बिफोर इन्फिनेटिव, यानी कि यहाँ पे नोस अलोन्स येन रितुर्ने। इफ यू टॉक अबाउट पासर सॉन्ग, यहाँ पे भी सेम चीज, बिफोर इन्फिनेटिव, मॉन अंकल बियॉन्ड द अराइवल द ला कंपैक्टने, हमको द ला कंपैक्टने की बात करना एस ई एन, सो हम लाएंगे बिफोर इन्फिनेटिव जो कि है यहाँ पे डी के बाद, ठीक है। सो डी अपोस्ट्रोफी ई एन अराइवल, ठीक है। पास्ट कंपोजिट में बिफोर अवर वर्ब, यहाँ पे दो वर्ब है लेकिन यहाँ पे अवर वर्ब कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि मैडम वहां पे कुछ ज्यादा ही बड़ा था और मेरी स्पेस बहुत कम थी तो मैंने लेगो लिख दिया, ठीक है। मैडम लगो आ आशिते बुकुप दे चॉकलेट्स फॉर सॉन एंड फैंट, ठीक है। तो मैडम लेगो एंड ए आशितात बुकुप फॉर सॉन एंड फैंट, यहाँ पे बिफोर अवर वर्ब, यहाँ पे अवर वर्ब है ये है, तो उन्होंने बिफोर दिस यहाँ पे en ले लिया यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स इट, ये en था। कोई भी आपको डाउट्स हो प्लीज लेट मी नो, ओके। क्योंकि थोड़ा बहुत तो हमने ये टॉपिक्स तो 11th में किया ही है, पार्टेटिव थोड़ा अलग था, तो थोड़ा अलग था, बाकी सब तो हमारा वही पैटर्न फॉलो रहा है। अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक वो भी हमने जैसे इरेगुलर वर्ब्स का हमने जैसे कॉन्जुगेशन पढ़ा है वैसे ही टाइप का है। सो yeah, that's the last topic of the day. Let's go to the last topic of the day, rear, that means to laugh का conjugation. So now comes the last topic of our chapter 1, rear का conjugation. बहुत छोटा होगा ये टॉपिक क्योंकि हमारे नॉर्मली 3-3 वर्ब या 4-4 वर्ब के कॉन्जुगेशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है, rear to laugh, जिसका ज टू इल अलॉन नोस वूस इल्स एल्स स्मेल्स लिख दिया है। यहाँ पे हमको पास से कंपोज से भी उसका वर्जन दिया हुआ है, ठीक है। सो ज रिस टू दिस इल अलॉन रित नोस रियॉन्स वूस रियस इल्स एल्स रियंट, और इसका पास से कंपोज है श आई रीड। अभी आप देखोगे ये इरेगुलर हो गया क्योंकि आरी का अगर आप देखे जाओ तो यू आता है, तो आरी यू आना चाहिए लेकिन सिर्फ आरी है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप कॉन्जुगेशन देखोगे सिर्फ पूरा हमारा जो आरी का होता है वो यहाँ पे इतना फॉलो नहीं किया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा क्यों लिखा हुआ है क्योंकि एथरा वर्ब भी कभी कभी आता है ना, सो यहाँ पे अवर वर्ब है ये दिखाने के लिए, ठीक है। सो हमारा एक और वर्ब है रीड का सुरीर, दैट मीन्स टू स्माइल, तो इसका सेम ही है, ज सुरीस टू सुरीस इल एलॉन सुरीत नोस सुरियॉन्स वूस सुरियस इल्स सुरियंत, और पास से कंपोज श आई सुरी, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली सेम। सो या गाइस, if you really like the video please like it, if you really find it subscribe worthy please subscribe, and आप अपने फ्रेंड्स की भी मदद करो, प्लीज शेयर देम द वीडियो। और आप मुझे कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी फीडबैक हो कमेंट्स में लेट मी नो, कुछ भी डाउट्स हो द इंस्टाग्राम इज देयर, एंड या थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय।